وزیر اعلیٰ کا فیصل آباد میں 121 FIR کے اندراج میں تاخیر پر نوٹس، محسن نقوی بر وقت درج نہ ہونے پر شدید برہم۔ آج ہی پنجاب سے رپورٹ طلب، وزیر اعلیٰ کا مقدمات میں تاخیر کی انکوائری اور غفلت کے ذمہ دار افسران کے خلاف کارروائی کا حکم۔ وزیر اعلیٰ نے FIR کے اندراج میں تاخیر کو انصاف کا قتل قرار دے دیا، کہا درخواستوں پر FIR کے اندراج میں تاخیر ناقابل برداشت ہے، 48 گھنٹوں میں انکوائری کر کے ذمہ دار پولیس افسران کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تھانہ سٹی جراوالہ کے علاقے میں اندھیر نگری چوپٹ راج، ڈاکوؤں نے دن دہاڑے مسافر بس لوٹ لی۔ مسافر بس گورڈا سے جراوالہ جا رہی تھی۔ پل جگہ ترن پر 6 ڈاکوؤں نے 35 مسافروں سے 70,000 نقدی اور موبائل چھین لیے۔ گوجرا میں ڈکیتی وارداتوں کا سلسلہ ختم نہ ہو سکا، سابق ہاکی کپتان شہباز جونیئر کا بھائی بھی لٹ گیا۔ 2 نامعلوم موٹر سائیکل سوار ڈاکو 6 لاکھ سے زائد نقدی چھین کر فرار، نان سٹاپ وارداتوں شہری عدم تحفظ کا شکار، پولیس حکام سے جرائم پر قابو پانے کا مطالبہ۔ محکمہ پولیس فیصل آباد تفتیشی افسران کا 13 کروڑ کا ڈیفالٹر نکلا، 1 سال سے افسران کو تفتیش کی مد میں اخراجات ادا نہ ہو سکے، 400 سے زائد تفتیشی افسران نے مختلف مقدمات پر جیب سے اخراجات کیے۔ فیصل آباد کے تھانوں میں نفری پوری کرنے کے لیے CPO ان ایکشن، ضلعی انتظامیہ کے افسران سے سرکاری گن مین واپس لے لیے گئے۔ پولیس لائن سے معطل 12 اہلکاروں کو بھی بحال کر دیا گیا، مجموعی طور پر 400 اہلکاروں کو مختلف تھانوں میں تعینات کر دیا گیا۔ پولیس اہلکاروں کے شہری کو اغوا کر کے تاوان لینے کا معاملہ، 2 اہلکاروں سمیت 4 افراد کے خلاف تھانہ صدر میں مقدمہ درج۔ مدعیہ مقدمہ عاصمہ بی بی کے مطابق اہلکاروں قیصر اور عمر دراز نے 2 ساتھیوں کے ہمراہ خاوند کو اغوا کیا، پولیس نے خاوند کو بازیاب کرا کر رقم برآمد کر لی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کا اجلاس، محسن نقوی نے عوامی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا، وزیر اعلیٰ کی جاری ترقیاتی منصوبوں پر بروقت مکمل کرنے کی ہدایت۔ فیصل آباد میں عبداللہ پور فلائی اوور اور جھنگ میں جناح پارک پر جلد کام شروع کرنے کی ہدایت۔ فیصل آباد میں سیف سٹی منصوبہ، محکمہ بلڈنگ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے منظور نقشے پر کام شروع کر دیا۔ فیصل آباد میں پنجاب پولیس انٹیگریٹڈ کمانڈ کنٹرول اینڈ کمیونیکیشن سینٹر 3 ارب 85 کروڑ 93 لاکھ کی لاگت سے مکمل کیا جائے گا۔ فیصل آباد کے بینک الحبیب میں 35 کروڑ فراڈ کا معاملہ، برانچ مینیجر زین علی کی درخواست پر کارروائی، ملزم سابق آپریشن مینیجر عمار کیانی کی تمام جائیداد ضبطگی کے احکامات، بھائی خالد اور حماد کی بھی جائیداد ضبط کی جائے گی۔ عمار کیانی اور ساتھی بینکار اہل خانہ سمیت امریکہ اور یورپ فرار ہو چکے ہیں۔ جنگ کے باسیوں کے لیے اچھی خبر، نگراں پنجاب حکومت نے روڈ سیکٹر منصوبوں کے لیے فنڈز جاری کر دیے، 32 کروڑ سے سیکشن روڈ یوسف شاہ روڈ سے منسلک سڑک کی بحالی ہوگی۔ جنگ پولیس کا جرائم پر کنٹرول کے لیے اچھا فیصلہ، دیہات میں سخت نگرانی کے لیے نمبرداروں کی مدد لی جائے گی۔ TPO ملک طارق محبوب کی زیر صدارت ضلع بھر کے نمبرداروں کا اجلاس، FP انویسٹیگیشن رحمان قادر سمیت تھانوں کے سٹاف کی شرکت، نمبرداروں کو پولیس مددگار کے طور پر رجسٹر کیا جائے گا، دیہی علاقوں میں پہرے دار بھی تعینات کیے جائیں گے۔ جھنگ اور چینیوٹ کی یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء خورونوش کی قلت، 1 ماہ سے چینی نایاب، آٹا بھی 2 ہفتے سے غائب، شہریوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا، بڑھتی مہنگائی میں یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء خورونوش کی قلت شہریوں کے لیے پریشانی کا سبب بن گئی۔ فیصل آباد کے سمندری روڈ پر غیر قانونی کالونی کے مکین وعدہ پورا نہ ہونے پر مشتعل، ڈیولپرز کے خلاف ڈپٹی کمشنر آفس میں احتجاج، کارروائی کر کے فوری انصاف کی فراہمی کا مطالبہ۔ فنڈز کی کمی یا معاملہ کچھ اور، جنگ میں موبائل ہیلتھ یونٹس بند کر دیے گئے، موبائل یونٹس دیہات میں صحت سہولیات کی فراہمی کے لیے چلائے گئے تھے، موبائل یونٹس CEO ہیلتھ دفتر کے باہر کھڑے کر دیے گئے۔
इन्फ्लुएंजा वायरस या बदलते मौसम के असरात चिन्योट में नज़ला जुकाम बुखार से बड़ी तादाद मुतासर होने लगी। डॉक्टर के मुताबिक मरीज खांसते या छीनते वक्त नाक और मुंह को ढांप लें। फ्लू के शिकार अफराद बुखार उतरने तक कम से कम 24 घंटे घर में रहें। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर शुएब अली ने बताया, मौसमी तब्दीली से बच्चों में चेस्ट इंफेक्शन का मर्ज बढ़ रहा है। ग्रेड 18 की खवातीन असिस्टेंट प्रोफेसर्स को ग्रेड 19 में तरक्की मिलेगी। डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस ने तमाम कॉलेजेस से पर प्रमोशन केसेस तलब कर लिए। 89 खवातीन असिस्टेंट प्रोफेसर्स को ग्रेड 19 में तरक्की दी जाएगी। फैसलाबाद में एसएसपी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच में मोहम्मद आसिफ ने रवा साल की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। रवा साल पुलिस के खिलाफ 239 शिकायत मौसूल हुई, 226 पर कार्रवाई मुकम्मल की गई। असलहा लाइसेंस की मंजूर शुदा दरखास्तों के प्रोसेस के लिए 31 दिसंबर की डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक शहरी असलहा लाइसेंस 31 अक्टूबर तक प्रोसेस करा लें। पंजाब आर्म्स रूल्स लागू होने के बाद नामुकम्मल प्रोसेस पर दोबारा मंजूरी के अमल से गुजरना होगा। चिन्योट जिले इंतजामिया का आलमगीर रोड पर तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया अल्ताफ हुसैन अंसारी, असिस्टेंट कमिश्नर अशफाक अहमद की निगरानी में तजावुजात पर समाअत कर दी गई। पाकिस्तान का सबसे ज्यादा दराज कद गोजरा का हक नवाज हुकूमती इमदाद का मुंतजिर। 8 फुट लंबा हक नवाज हड्डियां टेढ़ी होने की बीमारी में मुब्तला। हक नवाज इमदाद के लिए मुख्तलिफ स्कूल और कॉलेजेस में जाने पर मजबूर। हक नवाज ने कहा, बीमारी के सबब मुश्किलात का सामना है। वजीर आला पंजाब से मुलाजमत की अपील भी कर दी। फैसलाबाद पेपर डाइंग स्कूल में महफिल मिलाद नकाबत डायरेक्टर इफ्तिखार नकवी ने की। तलबा ने हदिया नात पेश किया। गवर्नमेंट कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में तालिबात के लिए टैक्स से मुतालिक आगाही सेमिनार। असिस्टेंट कमिश्नर FPR मीना ताहिर ने तालिबान को रिटर्न टैक्स और फाइलर को मिलने वाले मफाद से मुतालिक बताया। मीना ताहिर का कहना था कि रिटर्न टैक्स फाइल करने से आपके अदावे जाट टैक्स वापस मिल सकते हैं। फाइलर को बहुत सी सहूलियात फराहम की जाती हैं। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों पर एतराजात की समाअत के लिए ट्रिब्यूनल बना दिया है। 1 नवंबर से समाअत शुरू होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक समाअत के बाद हतमी फहरिस्त आवेजा होगी। हतमी फहरिस्त के बाद इलेक्शन तारीख का ऐलान होगा। वासा फैसलाबाद को डेली वेजेस मुलाजमीन पर तरस आ ही गया। 1 सितंबर को निकाले जाने वाले 700 से ज्यादा मुलाजमीन की स्क्रूटनी मुकम्मल कर दी गई। DMD एडमिन शुएब रशीद कहते हैं, 413 मुलाजमीन को दोबारा नौकरी पर रख लिया गया। इदारे के लिए इजाफी माली बोझ बर्दाश्त करना नामुमकिन नहीं। ज़राअत की तरक्की के लिए ज़रई हब के क़याम का फैसला। ज़रई शोबे को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता करने के लिए ज़रई हब फैसलाबाद में कायम होगा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ने जगह की निशानदही के लिए हिदायत कर दी। AC सदर और AC सिटी निशानदही मुकम्मल करेंगे। फैसलाबाद में ज़राअत को जदीद रिसर्च के साथ बेहतर बनाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद के यंग वकला का इजलास। सेक्रेटरी के उम्मीदवार मियां ज़ीशान ने सालाना इलेक्शन के हवाले से ब्रीफिंग दी। मियां ज़ियाउल हक साजिद, हसन साजिद चीमा, अब्दुल हन्नान, मलिक सलमान, मिर्जा अहमद हसन समेत वकला की बड़ी तादाद ने इजलास में शिरकत की। जिला जंग में 443 गैर मुल्की गैर कानूनी तौर पर मुकीम। खुफिया इदारों की नजरसानी। मजीद गैर मुल्कियों की निशानदही की हिदायत। गैर मुल्कियों को मुंतकिल करने के अहकामात में मुकम्मल कर दिए गए। जिला इंतजामिया जंग का अनोखा कारनामा। स्ट्रीट लाइट्स बहाल ना हुई, डेकोरेशन लाइट्स लगा दी गई। शाम होते ही शहर की मुतादिद शाहराहों पर अंधेरे का राज। चोर डकैती वारदातों में इजाफे का अंदेशा बढ़ गया। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस देने का मुतालबा कर दिया। लोकल गवर्नमेंट फीसों की अदायगी का सिस्टम ऑनलाइन कर दिया गया। शहरी धोखाधड़ी और फ्रॉड से बच सकेंगे। मुख्तलिफ जगहों पर जाने से भी निजात मिलेगी। लोकल गवर्नमेंट टैक्स मद में रेवेन्यू भी बढ़ेगा।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी के बावजूद गैस महंगी कर दी गई। कपड़े के ताजिर कहते हैं गैस महंगी होने से कपड़े की पैदावारी लागत में मजीद बढ़ेगी। कारोबार पहले ही शदीद मुतासर है। हुकूमत गैस की कीमतों में इजाफा वापस ले। फैसलाबाद में महकमा माहौलियात की फैक्ट्रियों पर बिला जवाब कार्रवाइयां। सनतकार परेशानी का शिकार। चेयरमैन एप्टमा शेख असगर कादरी कहते हैं माहौल साफ रखने के लिए कवानीन पर अमल के बावजूद महकमा माहौलियात की जानिब से कार्रवाइयां की जा रही हैं। फैसलाबाद के गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर में खुसूसी बच्चों के लिए स्क्रीनिंग कैंप का एहतमाम किया। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर की हिदायत। बच्चों की आंखों, मेडिकल और समातों का चेकअप किया गया। सुपीरियर कॉलेज जंग में सजा साइंसी मेला। तालिबात में भी बनाए खूबसूरत और मुनफरिद मॉडल्स। किसी ने माहौलियाती आलूगी को कंट्रोल और किसी ने ड्राइवर्स को हादसा से बचाने के लिए बनाए मखसूस ग्लासेस। शोरकोट में पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम पेफ पार्टनर स्कूलों के बच्चों के लिए खेलों और अदबी मुकाबलों का आगाज। प्रिंसिपल्स मोहम्मद अनवर, मोहम्मद मुश्ताक तकरीब में शरीक। पहले रोज कामयाब तलबा में तहसील सदर स्पोर्ट्स कमेटी मोहम्मद यासीन ने इनामात तकसीम किए। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की सालगिरह। चिरोट में ताजिर रहनुमा महर शाहिद की जानिब से केक काटा गया। मेंबर मरकजी काउंसिल डॉक्टर खालिद यासीन, समाजी शख्सियत जफर चौधरी की शिरकत। सीनियर सहाफी आमिर सिद्दीकी, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद फरहान भी मौजूद थे। तकरीब में मरियम नवाज की उम्र दराजी के लिए दुआ की गई। चिन्योट में काबिजीन के खिलाफ कार्रवाई। 30 साल से काबिज माफिया से करोड़ों की कीमती जमीन वागुजार करा ली गई। चक 136, 137 जीम बे में 200 कनाल सरकारी रकबा वागुजार करा लिया गया। काबिजीन के खिलाफ थाना रजुआ में मुकदमा भी दर्ज कराया गया। दोबा टेक्सिंग में इंतजामिया की गफलत। लाउड स्पीकर एक्ट की खुल्लम खुल्ला धज्जियां उड़ाई जाने लगी। गली मोहल्लों, बाजारों में रेडी बानों और रिक्शा ड्राइवरों ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। शहरी कहते हैं लाउड स्पीकर के बायस घरों में सुकून है ना बाहर। इंतजामिया एक्शन ले। लायन गोल्ड जिम एंड मार्शल आर्ट सेंटर के ज़ेरे एहतमाम वर्ल्ड जूडो डे पर तकरीब। खिलाड़ियों, ऑफिसर्स और डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर तारिक नजीर ने शिरकत की। डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर तारिक नजीर बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। खिलाड़ियों के दरमियान मुकाबले, केक भी काटा गया। डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी जूडो एसोसिएशन गजनफर अली, क्लब कोच राना रहमान, असिस्टेंट कोच मिर्जा नबील, सदर डिस्ट्रिक्ट कबड्डी एसोसिएशन राना इमरान भी मौजूद थे। चिन्योट में गंदम का काश्त शुरू। रवा माह में दूसरी बार डीएपी खाद महंगी कर दी गई। कीमत 12,815 रुपए हो गई। काश्तकार कीमतों में इजाफे से शायद परेशान। कहा डॉलर नीचे आने पर बावजूद खाद की कीमत में इजाफा सबसे बाला तक है। और हैप्पी बर्थडे टू वजीर आला पंजाब मोहसिन स्पीक। मोहसिन नकवी की 45वीं सालगिरह। मोहसिन नकवी की सालगिरह का दिन भी मसरूफ तरीन तरक्याती मंसूबों के दौरे और अवामी फलाह व बहबूद के प्रोजेक्ट से मुतालिक इजलास की सदारत की। वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंस के बाद वीसी की जानिब से वजीर आला मोहसिन नकवी की सालगिरह का केक भी काटा गया।